Good morning, students. Today we are going to cover our third chapter of Moral Science of Class 7. Chapter name is Positive Attitude. The objective of this lesson is explain to the children that a person with positive attitude always seen the good in all the situation. Make them understand that a positive attitude help you to cope more easily with daily affairs of life, to induct the belief that positive attitude does not means ignoring life troubles. It just means being an optimistic and always seeing good in every attitude. So this story is about one attitude matter our works. So once there was a discussion between the students and the teacher about the attitude towards work. Sir, a student asked his teacher, you always say it is not enough to do work well. Our attitude towards work is also very important. तो एक समय की बात है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा था। तो उतने में ही एक स्टूडेंट्स ने अपने सर से क्वेश्चन किया कि सर, आप कहते हैं कि बस अपने काम को करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अपने काम को लेकर हम कैसा एटीट्यूड रखते हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस, द टीचर रिस्पॉन्डेड, our attitude towards the work is very important. It make all the difference between success and failures. Then उसके सर रिप्लाई करते हैं कि हाँ, ये सही है कि काम करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम काम किस लगन और किस एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे लाइफ का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। Why is that? The student continue, how does attitude affect our success or failure? फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है, हमारा काम तो पूरा हो ही रहा है, बट उसमें एटीट्यूड किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि उस वर्क से हमें सक्सेस मिलेगा या फिर हम फेल होंगे। I won't explain it in word, the teacher said. I want to experience the difference yourself. फिर then sir replied कि आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। To emphasize that what he really meant, the teacher looked the group of students to a nearby site where construction work was in a process. He led them to a worker who was sitting breaking stone. Then उसके सर उन सारे बच्चों को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, उन्हें लेकर जाते हैं पास के ही एक साइट पर जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे थे। वहीं पर एक लेबर बैठकर कुछ पत्थरों को, स्टोन्स को तोड़ रहा था। वो उनके पास पहुँचते हैं। Could you please tell us what you are doing? All the teachers request. फिर सर उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हो आप क्या कर रहे हो। Can't you see I am breaking stone? The worker replied. Without saying anything, the teacher went a few further where another worker was doing his job. Again the teacher request, could you please tell us what you are doing? The man looked up and from his work and said, I am filling the foundation of this building. The stones in the foundation, the better will be the building.
सो सर जाते हैं फिर एक वर्कर के पास और उसे पूछते हैं कि क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या हमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वर्कर रिप्लाई करता है कि आप क्या देख नहीं पा रहे हैं, हम यहाँ पर स्टोन्स को तोड़ रहे हैं, पत्थरों को तोड़ रहे हैं। फिर सर वहीं पे पास में कुछ और वर्कर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो भी रिप्लाई करते हैं कि हम ये जो बिल्डिंग्स बनने वाले हैं इनके फाउंडेशन के लिए स्टोन्स को तोड़ रहे हैं। इनका फाउंडेशन बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। आफ्टर थैंकिंग द मैन फॉर हिज रिस्पॉन्स, द टीचर मूव ऑन टू एनी अदर वर्कर हु वॉज कटिंग मार्बल slable with a great precious. It was observed that he was totally busy with his work. फिर उससे क्वेश्चन करने के बाद वो जो सर थे वो नेक्स्ट वर्कर के पास जाते हैं जो कि मार्बल कटिंग्स कर रहा था और वो अपनी काम में काफ़ी ध्यान से लगा हुआ था। वंस ही अटेंड he did not take notice he did not take notice of the group of until the teacher went close to him. Once he attention was drawn towards the group, the teacher request, could you please tell us what you are doing? The man smiled, I am cutting marble piece for the floor of this temple. I am not only matching the color of the tiles but also giving each piece of the finish fine finish so that all devotees who visit the temple are not put any inconvenience. सो सर अगेन वो अपने कामों में इतना ध्यान से लगा हुआ था कि जब सारे ग्रुप उनके पास पहुंच जाते हैं और जब उससे रिक्वेस्ट करते हैं तब उसका ध्यान उसके काम से हटता है। और फिर सर उससे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो आप क्या कर रहे हो। तो जो मार्बल कटिंग वर्कर था वो बोलता है कि हम यहाँ पे टाइल्स और मार्बल्स को कट कर रहे हैं और ना ही बल्कि हम इसे कट कर रहे हैं बल्कि हम इसके कलर्स और शेप्स को भी काफ़ी अच्छे से पॉलिश और फिनिशिंग दे रहे हैं सो दैट अगर इससे जो इसका जो यूज़ होगा इस टेम्पल में तो वहाँ पे जो भी डिवोटर्स आएंगे उनको कभी इन सब चीज़ों की वजह से कोई अनकन्वीनियंस या किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो और उन्हें वो टेम्पल अच्छा लगे देखने में।